اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ مقارنہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی پیر کے دھلنے اور مسح کرنے کے متعلق، اور ہم نے امامیہ کی رائے جاننے کے بعد مذاہب اربع کی دلیل دیکھ رہے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پیر کا دھلنا واجب ہے نہ کہ اس کا مسح کرنا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے ایک کہا یہ کہ جو جتنی بھی غسل کی روایتیں ہیں وہ ساری خبریں واحد ہے، اور جبکہ مسح کرنے کا آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے تو روایتیں جو ہیں اس آیت کی کاٹ نہیں کر سکتی۔ اب آگے کی گفتگو پہ دیکھیے کیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا إِلَّا مِنْ وَجْهَيْنِ۔ صحیح ہے، وہ جان لو کہ اس کا جواب دو وجہوں کے سوا ممکن نہیں ہے۔ کیا مولانا؟ الاول ان الاخبار الکثیرہ وردت بایجاب الغسل، زیادہ تر روایتیں غسل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ دیکھیے کیسے اپنی بات کو پختہ کر رہے ہیں۔ ان الاخبار الکثیرہ وردت بایجاب الغسل، صحیح ہے، بہت ساری روایتیں غسل کے بارے میں وارد ہیں۔ والغسل مشتمل علی المسح ولا ينعکس، اور غسل میں مسح شامل ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس نہیں۔ کیا معنی مولانا کا برعکس نہیں؟ یعنی دھلنے کے ساتھ ساتھ مسح بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں راغب صاحب جی، دھلنے کے ساتھ ساتھ مسح صادق آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ دھونے کے ساتھ ساتھ مسح ہاں، کیسے صادق ہے؟ ایسے ہاتھ پھیریں گے تو نہیں صادق آ جائے گا، مسح ہو گیا۔ مسح میں کرتے ہی کیا ہے؟ یہی تو کرتے ہیں۔ ایسے دیکھیں گے تو یہ بھی دھل دیا نہیں، ولا ینعکس، مسح میں غسل نہیں پایا جائے گا لیکن غسل میں مسح پایا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ والغسل مشتمل علی المسح، غسل میں شامل ہے مسح، ولا ینعکس، لیکن اس کے برعکس نہیں۔ کیا مانے؟ یعنی مسح میں غسل ہے، مسح میں غسل نہیں، مسح میں مسح ہے، غسل نہیں ہے، اور غسل میں مسح بھی ہے اور غسل بھی ہے۔ اپنی بات کو کیسے پکا کیا انہوں نے۔ فَكَانَ الْغُسْلُ أَقْرَبُ إِلَى الْاحْتِيَاطِ، تو غسل کرنا کیا ہے؟ دھونا مولانا احتیاط کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں دھلنا بھی اور مسح بھی کرنا ہے، دونوں باتیں آ جا رہی ہیں۔ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، تو واجب ہے کہ اسی طرف چلا جائے، یعنی کیا کیا جائے؟ پیر کو دھلا جائے نہ کہ مسح کیا جائے، چونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں مسح اور غسل دونوں ہیں۔ وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها، اور اس طرح سے اس بات کا یقین واجب ہو جاتا ہے کہ پیر کا دھلنا مسح کے قائم مقام ہوگا، اور اس طرح سے اس بات کا قطع واجب ہے کہ پیر کا دھلنا مسح کے قائم مقام ہو۔ دوسرا مولانا والثانی ان فرض الرجلین محدود الی الکعبین، پیروں کو اللہ نے جب واجب کیا ہے تو اسے محدود کیا کہاں تک مولانا؟ کعبین تک۔ والتحدید انما جاء فی الغسل لا فی المسح، اور تحدید جو آئی ہے وہ غسل میں آئی ہے، مسح میں نہیں آئی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
समझ में आया मौलाना? मुअय्यन किस में किया गया है? काबैन में नहीं, मराफिक तक मुअय्यन किया गया ना, तो ये मराफिक किसके साथ है? गुस्ल के साथ है। कहा क्या कहा मौलाना? वो तहदीद इन्नमा जाअ फिल गुस्ल, तहदीद आई है किसमें? गुस्ल में, ला फिल मसह, मसह में नहीं आई है। यानी वमसहू बिरुऊसिकुम कहा है ना, कोई इब्तिदा इंतहा बताई वहां पे? वमसहू बिरुऊसिकुम, इनकी दलील क्या है कि तहदीद जो आई है वो गुस्ल में आई है, और रिजलैन को इलल काबैन तक कहा है। इसका मतलब यह है कि इसको किससे मिला दिया जाए? किसको? गुस्ल से। नहीं समझे कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। मुअय्यन किसको किया? धुलने को कि मसा करने को? धुलने को। कहा वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। जब पैर का तज़किरा किया तो इलल काबैन तक मुअय्यन कर दिया। कहा ये जो मुअय्यन किया है ये गुस्ल में तायीन की थी अल्लाह ने, मसा में नहीं की थी, इसलिए इसको भी किस में शामिल कर देंगे? गुस्ल में शामिल कर देंगे। वही बात हो गई, धुल दिया। क्या धुल दिया? अरे दलील क्या है उनकी? चौथी इसलिए उसने शामिल किया है। हाँ, धुला किस लिए पैर जा रहा है? वहां पे भी महदूद किया था, यहाँ भी महदूद है। दोनों जो महदूद किया था वो गुस्ल वाला था, मसे वाला नहीं था। वमसहू बिरुऊसिकुम, ये तो नहीं कहा कहां से कहां तक करना है। धुलने में आपको कहां तक कर दिया? इलल मराफिक तक कह दिया। तहदीद जो है मराफिक में है, गुस्ल में है, और यहाँ भी काबैन तक तहदीद है। इसका मतलब इसको भी किससे शामिल करेंगे? धुलने से शामिल करेंगे। मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? वत्तहदीद इन्नमा जाअ फिल गुस्ल ला फिल मसह, तहदीद आई है गुस्ल में न के मसह में। फहमत मौलाना? वल कौम अजाबू अनहु बिवजहैन, लेकिन कौम ने यानी कुछ लोगों ने इनका जवाब दिया दो वजहों से। पहला क्या मौलाना? देखिए, अल अव्वल अन्नल काबा इबारतुन अनिल अज़्म अल्लज़ी तहत मिफ़सलिल कदम। कह रहे काब से मुराद वो हड्डी होती है जो मिफ़सल यानी जोड़ के करीब होती है। तहत मिफ़सलिल कदम, कदम के मिफ़सल के नीचे होती है काब। अल काब कुल्लु मुफ़सलिन लिल इज़ाम, काब हर जो मिफ़सल की जगह होगी उसकी हड्डी को क्या कहेंगे? काब कहेंगे। अल अज़्मुन नाशिज़, दूसरी क्या है मौलाना? अल अज़्मुन नाशिज़ फ़ौक़ल कदम, उठी हुई हड्डी पैर के ऊपर, नाशिज़ उठी हुई। वाला हादा तकदीर फयजिबुल मसह अला ज़ाहिरिल क़दमैन, इस तकदीर पर कह रहे हैं कि मसा करना वाजिब है ज़ाहिरी कदम पर। अस्सानी देखिए मौलाना, दूसरी जो वजह क्या है? अन्नहुम सल्लमू अन्नल काबैन इबारतुन अनिल अज़मैन अन्नाशियैन मिन जानिब साक़, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि काबैन उन हड्डियों को कहते हैं जो उठी हुई होती हैं पिंडलियों की जानिब से।
इल्ला अन्नहुम इल्तज़मू अन्नहु यजिबु अन यमसह ज़ुहूरुल क़दमैन, सिवाय इसके कि उन्होंने इस बात को लाजिम किया है कि पैर के ज़ाहिरी हिस्सों का क्या किया जाए, मसा किया जाए। इला हादैनिल मौज़िऐन, इन दोनों जगहों तक, यानी काबैन तक। वहीनइज़िन ला यब्क़ा हाज़ा सवाल, फिर इस तरह का सवाल कोई बाकी नहीं रहता। और ये दोनों बातें कहां से मौलाना? तफसीर कबीर नंबर 2, सही ना? वहीनइज़िन ला यब्क़ा हाज़ा सवाल, चूंकि हमने इससे पहले भी कहा था ना कि फखरे राजी किस बात के कायल हैं? मसे के कायल हैं, है ना? वफी खिताम हाज़ल बहस, और इस बहस के इख्तिताम पर नुशीरु इला इख्तिलाफ यसीर हौल अल मस्ह अलल खुफ़ैन, एक मुख्तसर इशारा करेंगे, सही है, खुफ़ैन पर यानी मोजे वगैरह पर मसा के मुताल्लिक जो इख्तिलाफ पाया जाता है उसे। क़ाल अल जज़ीरी, देख लीजिए मौलाना, क़द सबत अल मस्हु अलल खुफ़ैनी बिअहादीसिन कसीरतिन सहीहतिन तक़रबु मिन हद्दित तवातुर, कह रहे हैं खुफ़ैन पर यानी मोजे पर मसा करना साबित है बहुत सादा हाथ सही हदीसों से जो तकरीबन तवातुर तक पहुंचती हैं। उनके यहाँ मसा जायज है, अहले सुन्नत हज़रात के यहाँ क्या है मौलाना? मसा कर सकते हैं, साबित है। और यहाँ तक कि उन्होंने दावा किसका कर दिया? तवातुर का कर दिया। हाँ, इतनी हदीसें हैं कि कहां तक पहुंचती हैं? तक़रुब मिन हद्दित तवातुर, तवातुर की हद तक पहुंच रही हैं। सैयद ख़ुई ने क्या कहा मौलाना, देख लीजिए, ला यजूज़ुल मस्ह अलल हाइल, सही है ना? हाइल पर मसा सही नहीं है, जायज ही नहीं है। कल खुफ़्फ़ी लिग़ैरि ज़रूरतिन, जैसे कि मोजा बिना किसी जरूरत के। जरूरत का मतलब क्या है? जैसे बहुत ज्यादा ठंड अटलांटिका में है, उतारते ही पैर जम जाएगा, खून जम जाएगा। अटलांटिका, अटलांटिका ये कहाँ? ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हैं? नहीं, पूरा ही वो रहता है, वो बर्फ से ढका हुआ है। अच्छा, नॉर्थ पोल यानी ऐसा समझ लीजिए, जमीन इस तरह से है ना, जमीन का जो रुख होता है वो कैसे होता है? जमीन तो गोल है, गोल तो है लेकिन है कैसे वो? इस तरह से है ना वो, यानी जमीन की जो रुख है वो रुख किस तरह से है? इस तरह से है ना, अंडे की शक्ल में है। तो जो ऊपर का कोना है और जो नीचे का कोना है, वो दो कोने ऐसे हैं कि जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, है ना? भाई सूरज जब जमीन ऐसे घूम रही है तो ऐसे थोड़ा घूम रही है, अपनी धुरी पे ऐसे घूम रही है ना। जब ऐसे घूम रही है तो जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है ये कहलाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वहां क्या रहती है? पूरी हमेशा बर्फ ही रहती है। हाँ, है वहां कोई रहता ही नहीं, रहता कौन है? ये देखिए ना, यहाँ पे आइए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ ये देखिए नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ये आ जाइए, इमेज में जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा, दिख रहा है? यहाँ क्या आपको दिखेगा सिवाय बर्फ के? नॉर्थ पोल पे जाओ, साउथ पोल पे जाएं। अच्छा, ये रहा ना नॉर्थ पोल का, ये देखिए टैग दिख रहा है, सिर्फ बर्फ मिलेगा। घर भी तो बना दिख रहा है। अरे तो ठीक है, एक आध बना लिया होगा तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है ना। घूमने जाते हैं लोग। अच्छा, वैसे ही साउथ पोल मिलेगा आपको सालों साल फर्क है। हमेशा। ये देखिए, वअलैहि युमकिनुना अन्नल मस्हा अलल खनीन, अब ये देख लेता हूं मैं। अब
اب یہاں پہ دیکھ لیں وعلیہ یمکننا ان المسح علی الخنین یجوز عند الضرورہ، اور اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خنین پر بھی مسح ضرورت کے وقت کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. ولا یجوز حال الاختیار، لیکن حالت اختیار میں جائز نہیں ہے. علی المذاہب کلھا، تمام مذاہب کے نزدیک. صحیح ہے. پھر اس کے بعد خلاصہ ہے اور یہ سوال و جواب ہے جو انشاءاللہ کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.